Class, let's start a lecture. It's oxidizing agents OA. The species which oxidizes a substance and get reduces is called oxidizing agent. It gain electron. Reducing agent, the species which reduces a substance and get oxidizer is called reducing agent. It loses electron. For example, oxidizing agent here, it gain electron. Suppose Cl minus gain 1 electron to form Cl. Gain means what is the take? इस बाहर से वो लेता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इज अपोजिट है. ऐसा रिडक्शन जहाँ पे होता है, रिडक्शन में क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन. और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. जिसका रिडक्शन हो रहा है कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. नेक्स्ट, द रिड्यूसिंग स्पीशीज. The reducing agent, the species which reduces a substance and get oxidized is called reducing agent. It loses electron. For example, suppose any sodium lose 1 electron to form Na plus. That is a NaM, sodium here gain the electron. Sorry, lose the electron to form Na plus electron. Examples here: redox reaction. Mg plus O2 to form MgO. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Mg is O 0 and oxygen is 0 MgO. Mg to form MgO and O2 form here MgO. That indicate that here O2 oxidation number here -2 and here is a O2. That is a here O2 is act as a reducing agent and Mg is act as a oxidizing agent. Look here. Oxidation half reaction is what? Mg to form ये Mg2 plus 1 Mg, एक Mg रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे Mg कितने? 2 है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4. That's why written here 2 Mg gives 2 Mg2 plus 4 electron. That is here electrons are lost by Mg. So according to definition of reducing agents, Mg loses electron. That's why Mg is called a reducing agent. Next is a रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ये जो रिडक्स रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमें मिला यहाँ पे Mg का Mg2 प्लस फॉर्म हो रहा है. दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट इज Mg. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन. एक ऑक्सीजन ओ इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना है? 8. दैट इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 6. ही नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू complete its octets. So one oxygen need what? 1 electron. That is 2 oxygens are there, need what? 4 electron to form either 2 O2 is there. What is it? There must be what is the O2? O2 minus is there. 2 O2 minus. There must be written minus. Remember here. That is this called as a oxidizing agent. O is what? Oxidizing agents. Understand here oxidation half reaction. Mg is how we become reducing agent and O2 becomes as a oxidizing agents. Because here is a loss of electron हो गया, यहाँ पे loss of electron, this called as a oxidation half reaction. और जहाँ पे oxidation होता है वो कौन होता है? Reducing agent. And reduction half reaction here, that is a gain of electron, that is reduction. And but oxygen here गेन इलेक्ट्रॉन, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ओवर द केमिस्ट्री. You are learning redox reaction, then electrochemistry or anywhere. This will be really useful to you to understand the oxidizing agent, reducing agent and oxidation reduction is important topics. इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे भी आपको ये बहुत काम आने वाला है. So again and again I'm explaining this topic here because it's very very important here. Understand? See the next one here. Rules to assign oxidation number. That is rule number 1. Rule number 1 is, देखो
क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। कोई भी फ्री स्टेट से वो mg सिंगल ही रिटर्न है, mg ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट 0। O2 रिटर्न तो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। H8 लिखा है, H8 का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। P4 है फॉर एग्जांपल यार, P4 0, H2 0, Na सोडियम सिंगल है तो भी 0, Mg जी यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, Na स्मॉल होना चाहिए, Au small, that is a Ag, Cu, all these are single element, maybe what molecule or any species there without any charge, then oxidation number of this that species is what is the of that atom or the species will be 0. Understand? This is the first rule. Next is the second rule. Rule number 2. What is rule number 2? Oxidation number of an atom in monoatomic ion is equal to its charge. Monoatomic ion ऐसा किसो एक सिंगल कोई भी एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर में उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल the alkali metal have oxidation number is 1 in all their compounds। जैसे यहाँ पे अल्कली मेटल्स कौन से हैं, जो ग्रुप नंबर 1 पीरियोडिक टेबल, आपको पीरियोडिक टेबल इसके पहले दिया था राइट, आपने शायद बाइड भी किया होगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन, lithium, sodium, potassium, these are the words, all they are the first group elements, and oxidation number of this first group element is what is the 1 plus 1 plus I did here plus 1, correct, it's in all their compounds. For example, NaCl, KCl, NaCl gas, Na1, K is also 1. Alkaline earth metal have in second group elements, so sodium उसमें include है, कैल्शियम है, lithium के बर्बेरियम, these are the oxidation number of alkaline earth metal is plus 2 in their compounds, that is a CaCO3, look at Cm, MgO, Mg is oxidation number what plus 2. Aluminum is considered to be oxidation number is plus 3, it belongs to the group number 3, aluminum, oxidation number is what is plus 3. Next question, next here, rule number 3. Rule number 3 says that here oxidation number of oxygen is usually -2. usually बोला है, usually means कभी कभी, मतलब ऐसा, मतलब बहुत बार ऐसा -2 रहेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल some of the expression are there in case of the except the peroxide and peroxide ion, it has oxidation number is what -1, and is a super oxide, each oxygen has oxidation number is a -half. These are the exception here, -1 and what is a -half. Usually it is a -2. जैसे आपने यहाँ पे MgO देखा था, वहाँ पे MgO है मैग्नीशियम का +2, ऑक्सीजन का -2, वहाँ पे ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड इसके हैं और फ्लोराइड्स के भी है, उनके लिए क्या है एक्सेप्शन है। सब फॉर एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर हम फाइंड करेंगे कैल्शियम, तो अकॉर्डिंग टू रूल कैल्शियम बिलोंग टू व्हाट plus group number 2 means alkaline earth metal, so oxidation number of the calcium is what +2, that's why oxidation number of the oxygen is not known, means what is the X written. So according to method to find oxygen number is a +2 plus X, total charge what is a 0 is there, +2 plus X is equal 0 means X is equal what -2. अभी यहाँ पे कितना आ रहा है -2 आ रहा है right, but in second example here H2O2 दिख रहा है, H2 is called हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज हाइड्रोजन तो 1 ही रहेगा, ऑक्सीजन का नहीं दिया है तो X लिया, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, टोटल चार्ज कितना है 0, यानी कि 2 into +1 + 2 into X कितना हो गया 0 is equal to 0, and 2 + 2X 0 means 2X is equal to -2, and X is equal to what -2 upon 2, that is -1. यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रूल देखो क्या बोल रहा है, पेरोक्साइड यदि पेरोक्साइड आयन कोई भी रहेगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा उसका -1,
और नेक्स्ट देखेंगे हम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. Potassium belong to the group number 1, alkali metals. Alkali metal oxidation number what? +1. Oxygen is let's suppose X. So 1 into, so potassium कितना 1, 1 into 1 plus 2 into X is equal to 0. And 1 plus 2X is equal to what? 0. That is a 2X is equal to -1. Right? A value of the X is equal. Value of X is equal to 2 divides and multiplies into what? Divides. Okay. नेक्स्ट एग्जांपल सी OF2 फ्लोरीन का ऑक्साइड है, X फ्लोरीन का हाइड्रोजन ग्रुप है. हाइड्रोजन ग्रुप में हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इनका ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? -1. 1 plus X plus 2 into -1 is equal to what? 0. That is the oxygen number of here. Oxygen is the oxidation number of oxygen. यहाँ पे कितना मिल रहा है? +2. यूजुअली कितना है? -2. एग्जाम्पल -1. यहाँ पे कितना आ रहा है? -1/2. These are the exception. Usually what is the -2. Most of reaction में आपको -2 मिलेगा. बाकी एक्सेप्शन के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो वहाँ पे कभी कभी आपको कितना मिलेगा? +2 भी मिलेगा, -1/2 भी मिलेगा, -1 भी मिलेगा. ओके. See the next one. Rule number 4. What is rule number 4? Read. Oxidation number of hydrogen is either +1 or -1. जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन का कितना लिया था? +1 लिया था और -1. अभी ये +1 कब आता है? अब -1 कब आता है? When the hydrogen atom is bounded with a non-metal. Non-metal कौन से हैं? ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, इनके साथ बाउंडेड है, non-metal के साथ. Its oxidation number is what? +1. When their atom is bounded with a metal, जैसा कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनके साथ बाउंडेड है, तो उसका ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा? -1. कीप इन माइंड दिस रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर रूल्स आर देयर. इसके बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करना है, तो वहाँ पे या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे बहुत कुछ काम आने वाला है ऑक्सीजन नंबर. तो H2 यहाँ पे देखो, जैसा कि एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में H2O, O का -2 तो H का कितना हो गया? +1. यहाँ पे लिथियम हाइड्रोजन H -1. लिथियम क्या है? मेटल है. विथ मेटल तो क्या होगा? +1. विथ मेटल कैल्शियम है, यहाँ पे C, ये +2 है. H2 कितना? माइनस. ये हाइड्रोजन का कितना हो गया? -1. हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया? -1 और ये 2 हो जाएगा. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5. Rule number 5, not a roll number. The oxidation number of fluorine is -1. Belong to the what? Halogen family. Halogen family यानी कि group number 17. Group number 17. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Periodic table बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके पहले आपको वीडियो जो दिया है आपको ग्रुप में या अपने कोचिंग क्लासेस ऐप पे, यहाँ पे पीरियड टेबल का वीडियो पूरा दिया है आपको. पूरा इसको देखना है अच्छे से. पूरे के पूरे एलिमेंट बाइट होने चाहिए, कौन से ग्रुप में कितने एलिमेंट है, उनको कैसे याद रखने का, वो आपको पीरियड टेबल पूरा दिया हुआ है. सो लर्न इट एंड कीप इन माइंड योर. ओके, डोंट फॉरगेट इट. एग्जांपल, सीधा एग्जांपल यार. OCl2, OI2, OBr2 means oxygen number here, chlorine -1, iodine -1, bromine -1. All they are the, देखो क्लोरीन सॉरी +1, यहाँ पे आयोडीन +1, यहाँ पे +1 है. जैसा कि इन देयर हैलाइड कंपाउंड्स रहेंगे तो, और हाउएवर अ कंपाउंड इन विच क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन के साथ रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? उनका +1 आने वाला है. ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो ये क्या आएगा? +1. बाकी के लिए तो वहाँ पे क्या आने वाला है? -1 ही आने वाला है. क्लोरीन का कितना आ रहा है? +1. आयोडीन का +1. ब्रोमीन का +1. व्हाई? बिकॉज इज बाउंडेड विद ऑक्सीजन. लेकिन अदर एलिमेंट के साथ रहेगा तो कितना आएगा? -1 ही आएगा. इट्स एक्सेप्शन. every in science, every has exception. बहुत सारी जितने भी कुछ एग्जाम्पल है वहाँ पे एक्सेप्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. विदाउट एक्सेप्शन ऐसा कुछ है ही नहीं है.
रूल तो सबके लिए फॉलो होता नहीं है, लेकिन रूल जनरली सॉल्व करने, लेकिन एक्सेप्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रूल नंबर 5 हो गया। नाउ रूल नंबर 6. Rule number 6 is the algebraic sum of oxidation number of all atom is a neutral molecule, that is a 0. Algebraic sum of the oxidation number of all atoms in neutral. यहाँ पे चार्ज नहीं है कोई स्पेसिस के ऊपर, H3PO3 दिया है, H3PO3 के ऊपर चार्ज नहीं है, H2SO पर ऊपर चार्ज नहीं है, तो वहाँ पे वो स्पेसिस के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कि NaCl यहाँ पे दे देखो, व्हाट इज NaCl, ठीक है, NaCl H2SO4 NaCl का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे पूरा स्पेसिस का टोटल चार्ज कितना हो गया 0, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया 0। तो अल्जेब्रिक सम Na क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, H यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो इनका टोटल जो है टोटल चार्ज यहाँ पे ऊपर दिया रहता है, तो ये कितना होता है 0, ये कितना 0 है। नेक्स्ट रूल नंबर 7. Rule number 7, the algebraic sum oxidation number all the atoms in a polyatomic ion is equal to net charge of the ion. Net charge of the ion means what is here? Let's say the example. Net charge देखो OH माइनस, यानी कि यहाँ पे -1 है, टोटल चार्ज यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस है, तो इनका अल्जेब्रिक सम टोटल कितना होगा -1, यहाँ पे अल्जेब्रिक सम कितना होने वाला है -2। यहाँ पे -2 लिया, ऑक्सीजन के साथ है तो +1 हो गया, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना -1 है। यस, नॉट गिवन, सपोज X O का कितना लिया -8, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना -2 है, तो इसे हम X सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। इसका सल्फर का कितना आ गया +6। नेक्स्ट रूल नंबर 8. Rule number 8. Rule number 8 says that when 2 or more atoms of an element are present in molecule or ion, oxidation number of the atom of that element will be average oxidation number. Here must be average oxidation number on of all the atoms that element in that molecule. So for example, हमें Fe3O4 दिया है, exists this molecule, इस atom exists as, यहाँ पे Fe3O4 लिखा है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है कैसा, FeO यहाँ पे 3 है, तो ये FeO और Fe2O3 this exists as here FeO Fe2O3. By using the rule, let's find the oxidation number. here O is -2 -6 हो गया, +3, यहाँ पे इसका O का FeO का O का कितना +2 हो गया, Fe का +2, ऐसा हम एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे आपको मिलने वाला कितना +8/3। यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि FeO 8 है, यहाँ पे X लिया सपोज 3 × X, तो 8 प्लस है, यहाँ पे माइनस चार्ज है पूरा, -8 वहाँ पे जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे भी, ये भी सॉल्व आप करेंगे तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व करके आपको कितना आंसर मिलने वाला है Fe का +8/3, यानी कि ये क्या है एवरेज है। 2 + 3 + 3 2 + 3 + 3, यहाँ पे जो Fe है इसका कितना हो गया 2, ये Fe है इसका कितना 3, इसका भी कितना हो गया 3 है, तो यहाँ पे 2 3 और 3 3 + 2 3 6 7 8 कितने हैं एटम, 3 एटम्स है, डिवाइड बाय क्या किया 3, तो ओवरऑल कितना आ गया +8/3, इस तरह आपको 8/3 मिलने वाला है। यहाँ से भी फाइंड करेंगे आपको तो वही आंसर मिलेगा। In case of the covalent bond, very important here, in case of covalent bond, En means electronegativity. 2 atoms are there, bonded, suppose NaCl, NaCl, sorry, covalent bonds. Covalent bond means what? The bond formed by thus sharing electron.
if number of electrons are shared, suppose कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर करता है, तो वहां पे इन केस ऑफ दिस कोल्ड बॉन्ड मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि FCl KCl है, उसके बाद CCl4, कार्बन का क्लोरीन के साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है, वहां पे कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वहां पे इन केस ऑफ दिस electronegativity of the B is greater than electronegativity of the A. Suppose B element electronegativity is greater than the A. Then first case यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फर्स्ट A is what is +1 और B का क्या होगा -1, जो क्योंकि B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, ज्यादा है. In case of double bonded +2 -2. In case of triple bond +3 is a -3. And in case of suppose B's electronegativity is greater than the A and the B is A share the both pair of electron, यानी A ने क्या किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, कभी कभी उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहाँ पे अब B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई B विल बी -2 एंड A गेट व्हाट इज +2. लेकिन उल्टा हो गया ऐसा क्यों, B electronegativity is greater than the A, negativity of the A B is greater than A, but both the electrons are shared by B, तो दोनों के ऊपर चार्ज होगा 0 0. इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट टेबल इन केस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बोला. बाकी द आयनिक बॉन्ड में आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, इन केस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यू मस्ट बी कंसीडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बारे हम अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल यू मस्ट बी अंडरस्टैंड हियर electronegativity of B is greater than what is the A, then B get minus and A get the plus. Okay. Now calculate the oxidation number of underlined atom. This question I think all of you solve in your notebook also, right ना. लास्ट जो लेक्चर लिया था मैंने, वहां पे आपको दिया था एग्जांपल ये H2SO4. देखो अकॉर्डिंग टू H का कितना होना चाहिए +1, O का कितना होना चाहिए -2, और यस का नहीं है तो क्या लेना आपको, x लेना है यहाँ पे. क्या लिया x, देखो +1 -2 और ये कितना लिया x. तो ये फाइंड करना है टोटल चार्ज, यहाँ पे स्पेसिस के ऊपर कितना 0 है ना. ओके, तो 2 into +1 plus 1 into x and 2 into what is a minus, what is a 4 oxygen, 4 into -A2, that is a 0. इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 6, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 6. ओके, OS ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 6. So the next example HNO3. In case of HNO3 बाउंसिंग कर रहा है, देखो HNO3 ये ना आ गया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है पहले +1 +6 नहीं, ओनली x and what is a -2, ऑक्सीजन इज a -2 अकॉर्डिंग टू रूल. तो वैल्यू पुट के यहाँ पे open notebook and try to solve it by watching the videos. Pause the video and solve it. Oxygen number, oxygen state, oxygen number of the N is +5. H3O3 देखो यहाँ पे plus S is a plus, O is a -2. Apply the rule here to find oxygen number of the underlying species. यहाँ पे underlying species कौन है, P phosphorus. 3 into +1, 1 into x plus 3 into -2 is equal to 0. Simplify this, answer you got x is equal to +3. Oxidation state, oxygen number of phosphorus is a +3. See the next one. अब यहाँ पे अंडरलाइन कौन है, क्रोमियन K2Cr2O4. K2Cr2O4. K belong to the first alkali metals. So +1 oxygen, -2
and chromium not given means X. Arrange the equation, simplify and find the value of what? X. In this way 2x 6 means X is equal to 6 upon 2. X वैल्यू कितना मिला आपको? +3 मीन्स X का यहाँ पे क्रोमियम का Cr, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Cr, सिंगल Cr, एक Cr का कितना होगा? Cr मीन्स नॉट क्रोर, इट इज अ +3 क्रोमियम. देखो H2SO6, H2SO4 भी है, H2SO6 ये भी एसिड है. एसिड के डिफरेंट टाइप्स है. HSO इनके साथ ही फॉर्मूले एसिड्स हैं. जैसा S यहाँ पे X लिया, 4S है तो 4 into X -2 इक्वेशन में अरेंज किया. 4x 10 मीन्स X इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 10/4 मीन्स 2 5/2 यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया. ऑक्सीडेशन ये है, फ्रैक्शन आया क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, S4 जो है यहाँ पे कैसा एवरेज मिला आपको. 4 सल्फर है, 4 सल्फर का अलग अलग डिफरेंट में है, जैसा कि फेरस का देखा था आपने लास्ट एग्जांपल में, वैसा यहाँ पे सल्फर का भी क्या मिला, एवरेज +5/2. ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन नंबर ऑफ द सल्फर इज व्हाट, +5/2. देखो यहाँ पे भी Cr2O7 और यहाँ पे चार्ज दिया है. देखो कह रहे चार्ज -2 है, दिख रहा है, -2 चार्ज. तो यहाँ पे और ऑल अलजेब्रिक सम कितनी होने वाली, 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं होगा. क्यों? चार्ज है -2. ओके, आ गया -2 and 2x - 14 is equal to -2, that is x is equal to what? X is equal to कितना आ रहा है, 12 डिवाइड बाय 2, x is equal to 6. आ गया 6, दिख रहा है. कैलकुलेट किया क्या आपने? Who do first? Now take a notebook and start to solve. Find this P. Option number of P. Fast. Come on. Before solving you must be solve it. But आपके पहले मेरा आंसर आ गया. P is a +5. Phosphor oxidation number of the phosphorus here +5. Okay, टिशाम हो गया. PCl3. आगे देखो +3. आपको लिखना है तो pause the video and write in notebook your PCl5. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, PCl5 phosphorus pentachlorides, phosphorus pentachloride HCl -1, that is X is equal to 5. Oxidation number of the phosphorus here +5. PS3. Oxidation number of the phosphorus H3+1. मिला कितना आ रहा है, X is equal to -3 यहाँ पे फॉस्फोरस का. अब बोलेंगे फॉस्फोरस इनका ऑक्सीडेशन नंबर बार बार डिफरेंट में आ रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर इज ए वेरिएबल. कुछ इनका फिक्स है, उनके लिए हमने रूल बनाया और रूल उनका फिक्स हो गया. देखिए हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1, हाइड्रोजन फैमिली है -1. इनके एक्सेप्शंस आर देयर. लेकिन बाकी सबके लिए आपको फाइंड करना है. वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइनिंग स्टेट कैसी कितनी है, वो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट है. वो मॉलिक्यूल कोवेलेंट है, कंपाउंड है, बाकी अदर कंपाउंड्स है, उसके लिए भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. H3PO2 यहाँ पे X फॉस्फोरस का कितना रहा, +1. वहाँ पे कितना रहा देखो, +5 था, +6 है, डिफरेंट आ रहा है. PO4 3- ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PO4 3- देखो यहाँ पे किसका निकालेंगे, फॉस्फोरस का. कितना है, चार्ज है यहाँ पे -3. टोटल अलजेब्रिक सम कितने हो गए, -3 हो गए, राइट. X -3 + 8, X is equal to +5. K-4. अंडरलाइन स्पीशीज कौन है, K, पोटेशियम. Mn बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसका कितना होगा, +2. ऑक्सीजन -2, राइट. ओके, नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट वो आपका आंसर आ गया, X is equal to +7.
B3O8 देखो यहाँ पे बी बोरॉन का निकालना है, बोरॉन का नहीं दिया है, एक्स लेंगे आप, लिया ऑक्सीजन का -2, ओवरऑल अलजेब्रिक सम कितना हो गया 0, 3x - 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16/3, यहाँ पे 16/3 यानी कि फ्रैक्शन आ गया, वाई बिकॉज बी कितना यहाँ पे 3 है, तीनों का एवरेज कितना है 16/3। H2SO6 यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड है, यहाँ पे आंसर आपको 5/2 वहाँ पे आया था, तो ये मेथड से हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है, सी क्लियरली, ये चीज कंबाइन विद O, is a bond is there, oxygen electronegativity is greater than the hydrogen, so oxygen carry -1, hydrogen carry +1। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का नेगेटिविटी देखो, नेगेटिविटी में देखें सबसे हाईएस्ट नेगेटिव इसका है फ्लोरीन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स है, तो O नेगेटिविटी इज ग्रेटर देन, लेट्स take the pen, I will take here pen here, laser points here, सीधा लेजर पॉइंट here, ऑक्सीजन -1, यहाँ पे +1 हो गया, ये दोनों के साथ एक बॉन्ड है, तो सल्फर के साथ क्या होगा +1, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा -1, वेरी इंपॉर्टेंट ये। और यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग के साथ है O, तो ये -1 और ये +1 हो गया, ये साइड भी ये -1 ये +1 हो गया, ये इसके साथ दोनों भी सल्फर सल्फर है, तो इनके पास कोई भी चार्ज आएगा नहीं, देखो ये ऐसे है, तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया, लेकिन ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पे -1 +1, यहाँ पे -1 +1, टोटल यहाँ पे देखो कितना रहा है सल्फर के साथ +1 +1 +1 +1, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कितना रहा है 5, यानी सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना होगा +5, ये वाले सल्फर का कितना हो गया 0 और ये वाले सल्फर का कितना हो गया 0। यहाँ पे सिमिलरली देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, बॉन्डिंग है सल्फर के साथ, ये सल्फर के साथ बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे 0 हो गया, ओके, ये भी सल्फर के साथ है, लेकिन यहाँ पे देखो +1 ये ऑक्सीजन के साथ है, 1 2 3 4, ये सल्फर है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी क्या होगा, नहीं ये यस है, यस के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे यस और यस के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, वो यहाँ पे इमेज बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना +1 +1 2 हो गया, 3 4 और 5, यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आना चाहिए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन होना चाहिए था, राइट, तो इस चीज में मिस्टेक है, लेकिन आपको यहाँ पे जो कोई बॉन्डेड आइटम नेबरिंग है, तो वहाँ पे क्या होगा उनका 0 होगा, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड है, तो +1 -1 हाइड्रोजन का प्लस होगा, है ऑक्सीजन का माइनस, तो इस तरह यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, ये 0 0, टोटल कितना हो गया 10 अपॉन कितने आइटम्स है 1 2 3 4 अपॉन 4 एंड 2.5 आ गया, ओके। नेक्स्ट है H2SO4, यहाँ पे क्लियर देखो पूरा इमेज यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा, H+1 O इज -1, +1, यहाँ पे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, +1 -1 हो गया, ये ऑक्सीजन सल्फर के बीच में बॉन्ड है -1 है, +1 हो गया, ये ऑक्सीजन सल्फर यहाँ पे ये दो बॉन्ड है इससे -2, ये दो बॉन्ड इससे +2, यहाँ पे +2 -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन -1 +1, देखो 2 2 4 एंड 5 एंड 6, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, ओके, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दी सल्फर सिंगल है यहाँ पे, तो कितना होगा 6 आ गया। B3O8 लास्ट एग्जांपल आपने देखा था यहाँ पे, B3O8 यानी B है यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन -2 +2 हो गया, ये ऑक्सीजन -2 +2 यहाँ पे हो गया, ये भी है -2 +2, यानी ये 2 2 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे 2 2 और ये B भी दोनों है तो 0 होगा, यहाँ पे +4, यहाँ पे B भी है 0 हो गया, यहाँ पे +2 +2 2 हो गया, और ये 3 यानी 6 6 6 12 +4 12 +4 16, अपॉन कितना होगा 3, तो इसका कितना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर देखो
आ गया, एवरेज एवरेज आ गया 16/3 यानी 5.333। कैरोज एसिड फॉर्मूले क्या देखो, H2SO5 कैरोज एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। ज्यादा एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शन आपको एज इट इज बाय आईडी करना पड़ेगा। कोई भी फिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे आपको बाय करके ही ना प्रैक्टिस करो। एक्सेप्शन इतने सारे के बेस्ट नहीं होते, कुछ होते हैं, तो उनके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। इट्स अ वेरी सिंपल। अभी तक किसी को तो इतना कुछ डिफिकल्टी आया नहीं होगा एग्जाम्पल सॉल्व करने में, समझ में। ना कोई ऐसा हार्ड रॉकेट साइंस तो है नहीं है, वो सिंपल है करने वाले के लिए, नहीं करने वाले के लिए तो बहुत रॉकेट जैसा लगेगा, धुआं निकलता होगा। H2SO5 H plus full videos, don't skip any topic. Each and every topic is important, each and every example important here. In point of your exam, in point of your competitive exam, this example all is other very very important. देखो यहाँ पे सल्फर का निकालना है आपको, H+-1 यहाँ पे हो गया। समझ में आ गया। डबल बॉन्ड है -2+2 हो गया यहाँ पे। ये सल्फर ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो -1 होगा। टोटल ओवरऑल यहाँ पे आ गया इसका, देखो ओवरऑल कितना आ रहा है यहाँ पे 16 आ रहा है। ये 2 4 5 और ये 6 राइट है। ओके, मार्शल एसिड, ये भी एक मार्शल एसिड का ये फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर, मार्शल एसिड स्ट्रक्चर देखो, सल्फर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 2 सल्फर है, यहाँ पे 2 सल्फर का एवरेज कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ओके, ओन सॉल्व करना, ओन खाली स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है सल्फर के साथ, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है सल्फर के साथ, बाकी बीच में 2 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने 8 है। यहाँ पे 2 गए, यहाँ पे 2 4 हो गए, 5 6 और एन में OH लगाना है। ऐसा आप याद रख सकते हो। और एक देखो, क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड CrO5, Cr क्रोमियम एट सेंटर देना है, बाकी ऑक्सीजन 5 यानी 4 कॉर्नर पे एक बीच में दो, बस हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो बाय यूजिंग द बॉन्ड। ये बॉन्ड है देखो, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा 6+6 H2O7। ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज कितना है 6, ऑक्सीजन नंबर एवरेज यहाँ पे आ रहा है डबल H2 है तो 6 हो गया। और एग्जाम Na2H2O3 स्ट्रक्चर, Na2 सोडियम 2 है तो एक साइड एक O उसके साथ 2, बाकी बीच बचता है क्या S2 और O3, 2 S यहाँ पे दिया। और O3 एक S के साथ 3 O लगा दो, बस हो गया। एक O बचता है तो नीचे लगा दो, O के साथ N है, O के साथ N है, बस। ऑप्शन नंबर कितना आ गया +6। हाइड्रोजन साइनाइड CN HNC हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रोसाइनाइड, 2 एग्जांपल यहाँ पे। ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना है। H3PO4 फॉस्फिक एसिड, फॉस्फोरस यहाँ पे दिया। ऑक्सीजन कितने देखो 4 है तो 3 ऑक्सीजन नीचे गए, 1 ऑक्सीजन ऊपर, बाकी सब 3 हाइड्रोजन के साथ, O के साथ 3 हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर बन गया। नाउ फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे। बहुत सारे एग्जाम, H3PO4 फॉस्फिक एसिड, H3PO4 सेम है वहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइड्रोजन कम, एक ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, इसलिए O डायरेक्ट H ज्वाइन करना है। लास्ट एग्जांपल H3PO4 था, यहाँ पे H3PO3 है। ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया +3। NO2 ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OO, क्योंकि ऑक्सीजन को कभी भी 2 बॉन्ड चाहिए कंप्लीट, नाइट्रोजन के 3, लेकिन यहाँ पे एक्सेशन आ गया, यहाँ पे 4 बॉन्ड नीडेड। +2 ये भी +2 हो गया, +2 +2 +4, ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन है +4। H3PO2 P, वहाँ पे H3PO4 H3PO3 H3PO2 आ गया।
यानी कि यहाँ पे जो था स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली हमने बॉन्डेड किया। लास्ट वाला एग्जाम्पल H3PO3 में यहाँ पे O था H, H3PO4 में क्या था OH OH OH। अच्छा यहाँ पे HH, इसके ये O के साथ नीचे H है, यहाँ पे H है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा 4 है, टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स। कार्बन का ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे प्लस 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 कितना 4 बॉन्ड 4 प्लस। नाउ फिलहाल टिल नाउ स्टॉप टू दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, लेट्स स्टॉप नाउ।